بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الانبياء والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آج موضوع ہے قربانی کا. تو سب لوگوں کی فرمائش ہے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا جائے کہ کتنے سال کا ہونا چاہیے. تو حدیث مطابق یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا جانور بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ بھیڑی یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا. اور گائے بیل بھینسا بھینسی کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹنی 5 سال کا ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ کوئی بکرا بکری 11 مہینے کا ہے، 1 سال پورا نہیں ہوا، لیکن وہ تندرست ہے، دیکھنے میں 1 سال سے زیادہ کا نظر آتا ہے، تو اس کو قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بڑے جانور میں گائے بیل بھینس وہ 2 سال پورے نہیں ہیں، لیکن اس طرح تندرست ہیں تو 2 سال سے زیادہ کے نظر آتے ہیں، تو اس کو بھی قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جانور میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. قربانی جو کرتا ہے وہ پلسرات کا وہ سواری بنے گا، اسی پہ سوار ہو کر پلسرات کا جو سفر ہے 1500 سال کا اس جانور پہ طے کرنا ہے. تو تندرست جانور ہونا چاہیے. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جانور جب خریدتے ہیں تو اس میں اپنے معیار کو دیکھتے ہیں، اپنے اوقات کو دیکھتے ہیں، جبکہ اوقات نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے سامنے تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اب آپ 10 لاکھ کا بکرا لے کے آئیں گے اور دکھائیں گے محلے میں کہ ہم نے اتنے مہنگا بکرا لایا، تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. جو قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، جو دکھاوا ہوتا مقصد، اس قربانی کا ثواب جانور کے سینگ سے بھی اوپر نہیں جاتا، جانور کے سینگ سے بھی اوپر نہیں اٹھتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس تمہارے جانور کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، اگر اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری. اللہ کو یہ نہیں کہ تمہارا جانور کتنے مہنگا ہے. آدم علیہ السلام زمانے میں قربانی ہوتی تھی، حابیل اور قابل نے بھی قربانی دی تھی. تو اس زمانے میں قربانی قبول ہوئی نہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا تھا. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ اترتی تھی، تو جس کے جانور کو آگ نے جلا دیا وہ قربانی قبول ہو گئی. تو حابیل اور قابل نے بھی اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیا. تو آسمان سے آگ اتری اور حابیل کے جانور کو جلا دیا، جبکہ اس سے سٹا ہی اس سے لگ کر کے قابل کا بھی جانور رکھا ہوا تھا، اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں. تو قابل ناراض ہو گیا، اللہ نے میری جانور کو میری قربانی کو قبول نہیں کیا اور حابیل کو قبول کیوں کیا؟ حابیل کو قبول اس لیے ہوا کہ وہ تقویٰ تھا، اس کے اندر وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے قربانی کی تھی اور ایک اچھا خوبصورت جانور اللہ کی قربانی پیش کیا تھا. وہیں قابل جبکہ جانور کی پرورش کرتا تھا، جانور پالتا تھا، وہ اچھے سے اچھا جانور کر سکتا تھا، لیکن اس نے لاغر اور کمزور جانور کو پیش کیا. اس میں دل میں خلوص نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا، تو اللہ نے قابل کے جانور کو قبول نہیں کیا. تو وہ مثال ہمارے سامنے آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے. اگر ہم دکھاوے کے لیے قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. دنیا میں نام عزت تو مل جائے گا تو فلانے کا جانور بہت قیمتی تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا، بہت مہنگا تھا، لیکن اللہ کے پاس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا اور وہ حصہ اس کے منہ پر مار بھیجے گا. تو
तकवा पैदा करें। जैसे कुरान में फरमाया गया कि तुम्हारे जानवर का खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तकवा परहेज़गारी के साथ। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं शरीर तौर पर रखता हूँ कि जहाँ पे आप जानवर तकवे के साथ करते हैं, आपके बहुत पैसे माशाअल्लाह अल्लाह ने नवाजा है, जानवर आप बड़ा जानवर खरीदते हैं, जब 10 लाख खरीदते हैं, या बकरा 70,000 80,000 1 लाख खरीदते हैं, जबकि 25,000 में भी आप कुर्बानी के लायक अच्छा जानवर मिलता है। तो जहाँ पे आप एक जानवर 50,000 खरीदते हैं, वहीं पे एक और थोड़ा सा दिल बड़ा करके काम ये कीजिए कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब, बेशक आप 25 का एक जानवर खरीदा, तो बाकी आप जो 50 जो खर्च कर रहे हैं दूसरे जानवर, पहले 75,000 का जानवर खरीद रहे हैं, तो उसमें 2 जानवर खरीद लीजिए, 3 खरीद लीजिए। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आप अपने वालिद के नाम से करा दीजिए, वालिदा के नाम से करा दीजिए, या अपने बच्चे उनके नाम से करा दीजिए। इससे क्या होगा कि गोश्त ज़्यादा जमा हो जाएगा और ये ज़्यादा तक पहुँचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि जब कुर्बानी जब करते हैं तो उसका गोश्त उन्हीं घरों में भेजते हैं जहाँ कुर्बानी होती है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। जिनके घर में कुर्बानी भी तो उनका तो गोश्त है ही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं माशाअल्लाह ईद की, लेकिन उनके घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँच पाता, और वो एक एक बोटी के लिए तरसते रह जाते हैं। उनको अफसोस रहता है हमारे घर में कुर्बानी का मौसम लेकिन गोश्त पे एक बोटी भी नहीं आया। तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप हिम्मत बढ़ाएं। जहाँ पे एक जानवर 75,000 का खरीद रहे हैं या 10 लाख का एक बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी कुर्बानी के लिए एक जानवर खरीदें और बाकी और जानवर खरीदें, ताकि ज़्यादा गोश्त हो जाएगा और दूसरे तक जो गरीब हजरात हैं वहाँ तक भी पहुँचा दिया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ज़कात फितरे का जो तरीका है वो मालदार को नहीं दिया जा सकता, गरीबों को दिया जाएगा और उसी जो हकदार उनको दिया जाएगा। वैसे कुर्बानी का गोश्त का भी मसला है, आप गरीबों तक पहुँचाएँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो आपसे मांगने नहीं आएंगे, जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है वो आपसे मांगने नहीं आएंगे, ना कहने आएंगे हमारे घर में कुर्बानी नहीं हुई है। उनकी भी इज्जत है, उनको भी शान है, अज़मत है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में अल्लाह ने कुर्बानी की तौफीक दी है तो हम कुर्बानी का हिस्सा उन गरीबों तक जरूर पहुँचाओ, बहुत प्यार के साथ। इसमें ज़रूर ख्याल रखिए ना किसी हड्डी 2 डाल दिया तो बेचारा हड्डी क्या पकाएगा, इतना तो डाले कम से कम तो घर में एक वक्त का थोड़ा सालन बन जाए, उसमें गोश्त और हड्डी मिक्स करके डालें ताकि बच्चों को थोड़ा मिल जाए। इसलिए इस पर ज़रूर ख्याल रखें। तो भी आदमी ने देखा है कि कुर्बानी करते जैसे बकरा किया तो वो गोश्त रख लेते, फ्रिज भर कर रखते हैं और 6 महीने तक खाते रहते हैं, ये भी गलत है। कुर्बानी का तो उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा घर में रखें, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा पड़ोसियों के लिए, 3 हिस्सा करना चाहिए। इस तरह से बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो हिस्सा अगर पूरा जानवर कर रहे हैं तो जितना आप 3 हिस्सा कीजिए, एक हिस्सा अपने घर में रखिए, वो तो बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह, तो बाकी 2 हिस्से गरीबों तक पहुंचा दीजिए। और ये ख्याल रहे कि उन घरों तक जरूर पहुंचे जहाँ पे जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है। तो ये कुर्बानी का मसला हो गया। और कुर्बानी जो है नमाज, ईद के नमाज से पहले नहीं होती। अगर किसी ने ईद के नमाज से पहले कुर्बानी कर दी तो उसको ईद के बाद, नमाज के बाद दोबारा कुर्बानी करना होगा, तो कुर्बानी जो है नमाज के बाद ही होती है। और कुर्बानी का 3 दिन है, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं और 12वीं के मगरिब से पहले। कुर्बानी जो है शाम को नहीं होती, मगरिब से पहले तो कुर्बानी कर देना चाहिए, रात को कुर्बानी। और कुर्बानी के सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिसके नाम से कुर्बानी हो रही हो अपने हाथों से करे। अगर वो नहीं कर सकता, उसे नहीं आता है, तो वहाँ पे मौजूद रहे, जिससे कुर्बानी हो रही वहाँ पे रहे वो। और जिसने तक़वा परहेज़गारी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उसने कुर्बानी की है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पे गिरने से पहले उसकी कुर्बानी अल्लाह तक पहुँच जाती है, वो मकबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तक़वा और परहेज़गारी के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिन पे ज़कात वाजिब है उन पे कुर्बानी भी वाजिब है। अच्छा, आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में कुर्बानी हो। जैसे एक घर के लोगों ने, अब उनकी कुर्बानी किसी पर वाजिब नहीं है, लेकिन सब लोगों ने मिल करके पैसा जमा किया और एक जानवर खरीद के लाया, तब वो अब वो कुर्बानी किसी पे वाजिब नहीं था, लेकिन फिर भी एक शौकिया तौर पे जानवर लेकर के आए, तब वो किसी के नाम से भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बेहतर तरीका यही होता है कि हुजूर के नाम से करते हैं, बेशक बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उनके नाम से अपने तरफ से पेश कर दें, उनके नाम से कुर्बानी कर दें।
गलती अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि जिनके पर कुर्बानी वाजिब है वो अपने नाम से ना करके किसी और के नाम से करते हैं। तो आप याद रखिए, कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर है, आपको इसका हिसाब देना होगा हश्र के मैदान में। तो पहले अपने नाम से कीजिए कुर्बानी, उसके बाद फिर दूसरे के नाम से। अगर आपने अल्लाह ने आपको नवाजा है तो वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर बीवी साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर दोनों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन दोनों मिलकर के पैसा जमा कर कुर्बानी के इंतजाम करते हैं तो फिर किसी के नाम से भी कर सकते हैं, किसी के नाम से भी कर सकते हैं या हुजूर के नाम से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मसले हैं ईद के बारे में। ईद का जो शुरू का अशरा जो है चांद रात से कुर्बानी तक के अल्लाह के नज़दीक बहुत मोतबर है, दिन भी और रात भी। ये 10 दिन के रोज़े, हर एक दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के बराबर उसको दिया जाता है। और ये 10 दिन अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा मोतबर है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इन अय्याम में जो इम्तहान लिया था ख्वाब के ज़रिए से कुर्बानी का, ये 10 दिन अशरा गुज़रा था उसमें। और इसमें हाजी हज के लिए वहाँ जमा होते हैं। ये जो 10 दिन का अय्याम है बहुत कीमती है, इसको इबादत में गुजारे। और 5 वक्त नमाज तो है ही है, मौका मिले तो तहज्जुद का भी तमाम करे। और जो इसमें एक रात है अरफा की रात, यानी कि जैसे चांद रात होती है ईद में, कुर्बानी के आने वाले दिन की रात जो है अरफा की रात, ये बहुत कीमती है, मकबूलियत की रात है। तो हम उस दिन अक्सर क्या करते हैं, ईद की तैयारी में, घर के सामान में, ज़रूरियात को पूरा करने में लगे रहते हैं, पूरी रात गुजार देते हैं। तो उसमें आप जहाँ भी ईद की तैयारी करते हैं थोड़ा मौका निकाल करके आधा घंटा से ही अल्लाह के लिए इबादत में गुजार दें। नमाज पढ़ें, नफिल पढ़ें, थोड़ा तस्बीहात पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे क्योंकि अल्लाह ताला ने वो अरफा की रात बहुत कीमती रात और मकबूलियत की रात रखा है। ये नमाज बकरीद की नमाज जो है बहुत जल्दी की जाती है। ज़रूरी ये है कि फजर की नमाज से पहले हम पूरी तरह तैयार होकर के मस्जिद जाएं और हो सके तो मस्जिद में बैठे, क्योंकि ईद के दिन इशा की नमाज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी, डायरेक्ट ईद की नमाज पढ़ाई थी। तो ईद के दिन इशा की नमाज नहीं होती है, फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है। रमज़ान ईद में सुन्नत तरीका यह है कि अफ्तार करके जाएं, क्योंकि पूरा रमज़ान रोज़ा रखा होता है। तो अफ्तार करके यानी एक खजूर जो भी अल्लाह ने मैसर के मीठा खा करके नमाज के लिए जाएं। लेकिन बकरीद में उसका अलग है। बकरीद में यह है कि आप घर से कुछ भी खा कर ना जाएं, आपका रोज़ा रहेगा, रोज़े की हालत में जाएं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद आ करके घर पे जो भी मैसर है वो खा लें। अगर आप एक कुर्बानी हो रही है तो कुर्बानी की गोश्त से अफ्तार करें, ये सुन्नत तरीका है। और एक और मसला आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख से 13 ज़िलहिज्जा के आखिर तक तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से 13 ज़िलहिज्जा के आखिर तक तकबीर तशरीक़ एक मतलब पढ़ना मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना, मर्द के लिए ज़ोर से और औरतों के लिए आहिस्ते से पढ़ना मुस्तहब है। अगर उससे भूल जाए, जब याद आ जाए पढ़ लें। आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।